Hello everyone, welcome you to the Plant Pathology Marathon Sessions. So I'm your mentor Parul and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये मैराथन सेशन जिसके अंदर पार्ट वन के अंदर देखो मैंने हिस्ट्री और ये सब इनिशियली नहीं किया है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो हम टॉपिक वाइज जो हिस्ट्री रहेगी उसके अंदर ही हम काफी चीजें कवर कर लेंगे। तो पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन्हें कवर करना जरूरी है, तो पहले हम वो बना रहे हैं। और जो जनरल हिस्ट्री या जो जनरलाइज चीजें कुछ होंगी वो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर बना लेंगे। ठीक है। सो during our first part we are going to cover about bacteriology, and second we are going to cover about the mycology. So we are going to cover about mycology and bacteriology in this part because both the units are very important, and I'm going to explain you the important concepts in both English as well as in Hindi. Okay, so this will be useful for both the students because separate sessions are not possible. And without wasting the time, let's get started. Okay, so firstly, we're going to start with the bacteriology. Okay. Now, few historical point of views, like few important direct questions about history related or some terms, some father like that. Okay. So first of all, the important is who is known as the father of bacteriology, or we can say who is known as father of microbiology. माइक्रो और बैक्टीरियोलॉजी ये सबसे पहले किसने देखी थी? एंटन वन ल्यूवन हॉक। ठीक है, एंटन वन ल्यूवन हॉक in 1675, and he developed the first simple microscope. Okay, so we know what is bacteria. So first of all, he has discovered the few living cells that are bacteria, and he called it as animalcules. Okay, now basically what are bacteria? Bacteria are, unicellular organism. They are prokaryotes. Okay, and who coined this term bacteria? तो term bacteria जो है ये किसने दी थी? ये दी थी एहरनबर्ग ने। ठीक है, term bacteria was given by Ehrenberg. Okay, and Ehrenberg only gave the term bacillus. So both bacillus and bacteria, these both terms were given by the Ehrenberg. Next important scientist is who is known as father of modern microbiology. Father of modern microbiology. So modern microbiology father is Louis Pasteur. So Louis Pasteur is known as father of modern microbiology. Father of bacteriological techniques. Bacteriological techniques. इनके father हम किसको कहते हैं? Robert Koch. Okay, so Robert Koch is known as father of bacteriological techniques. Next important is who is known as father of plant bacteriology. So father of plant bacteriology कौन है? E.F. Smith. और E.F. Smith जो है इन्होंने ही क्या दिया था? Fourth Koch postulate, and he was the person who gave the proof that bacteria are the causal of plant disease, or we can say bacteria are plant pathogen. So he gave the proof that bacteria are plant pathogens. Okay, so which was the first bacterial disease that was studied in India? That was Bengal blight of potato. And this Bengal blight is caused due to the Ralstonia solanacearum. ओके, तो पहली डिजीज जो इंडिया में जो सबसे पहली डिजीज स्टडी की गई थी दैट वाज बेंगल ब्लाइट। और वैसे हम देखते हैं कि दैट फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दैट वाज डिस्कवर्ड, सो दैट वाज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड pear by T.J. Burrell. Okay, so this was the first disease all over.
that was discovered, first bacterial disease that was discovered. But in India, the first bacterial disease that was studied, that was Bengal blight of potato, that is caused by Ralstonia solanarisum. Okay, next important point is about the next important scientist is Vinogradisky. So Vinogradisky, he is known as father of soil microbiology. Father of soil microbiology. Other than that, what he did, he isolated the anaerobic nitrogen fixing bacteria. Okay, which one? Anaerobic nitrogen fixing bacteria, which is known as Clostridium. Clostridium. Clostridium pasturinum. He discovered that, he isolated that from soils. Okay, other than that, next important scientist is Louis Pasteur. What we learned about Louis Pasteur कि Louis Pasteur को हम father of modern microbiology बोलते हैं. इसके अलावा Louis Pasteur के और क्या क्या contributions है? That Louis Pasteur gave the method of pasteurization. Louis Pasteur ने और क्या किया था? Pasteurization दिया था इन्होंने. He is known as father of modern bacteriology, or we can say he is known as father of modern microbiology, or we can say he gave germ theory of disease. Okay, other than that, he gave pasteurization. So what is pasteurization? It is the partial sterilization. कि pasteurization में, sterilization में तो देखो क्या होता है कि हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अंदर हम किल कर देते हैं, चाहे वो बेनिफिशियल हो चाहे वो हार्मफुल हो, हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को completely रिमूव कर दिया जाता है. Pasteurization is known as partial sterilization because in this we just destroy the pathogenic microorganisms and not the beneficial microorganisms. Okay, so different fermentation processes are done based on this pasteurization, and importantly that pasteurization of milk is done. Okay, that is around about 62.8 degrees Celsius for 30 minutes. So this pasteurization is of two types, like high temperature, short time, and low temperature, long time. ओके, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा देंगे टाइम कम लगेगा, और टेम्परेचर कम देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो हाई टेम्परेचर वाली क्या रहती है? 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, एंड लोअर वन इज 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. ओके, व्हाट आर द टू कंडीशन? 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड एंड 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. Okay, so this was the contribution of Louis Pasteur. Okay, other than that, the important scientist is Robert Koch. So Robert Koch के नाम से क्या याद आता है हमें? That Robert Koch gave the Koch postulates, right? He is known as father of bacteriological techniques. Then, other than that, he gave the Koch postulate, but the fourth one was given by E.F. Smith. अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बेसिकली अपने जो एंथ्रेक्स डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज है, टीबी हम कह देते हैं, कोलेरा, anthrax, TB, cholera. He studied about these diseases, and he specified that what bacterial pathogens cause these diseases, like Bacillus anthracis or tuberculosis, cholera. The causal organism of these diseases was studied by Robert Koch. Okay, next one is we know that the what were the Koch postulates. Okay, basically first one is that the pathogen, that organism should be always associated with that particular disease. It should be present wherever the disease is there. Second one, it could be isolated and we can grow it in the pure culture. Third one, if we inoculate that pure culture into the healthy plant, it should show the symptoms, it should show the same symptoms. And the fourth one is the process of re-isolation. So if we re-isolate that particular pathogen, it should be same as the earlier.
ओके, इट शुड बी ऑल्सो ग्रोन इन द प्योर कल्चर। सो ये थे कॉच पोस्टुलेट कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी पैथोजन है जिसको भी हम देख रहे हैं वो हमेशा उस डिजीज के साथ एसोसिएटेड रहना चाहिए, कि जहां जहां पर हमें डिजीज मिलेगी वहां वहां पर हमें वो पैथोजन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट होता है कि जिसके अंदर हम उसे क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, यानी कि उस डिजीज प्लांट से जब हम आइसोलेट करेंगे तब हम उसे एक प्योर कल्चर के अंदर ग्रो करवा पाए। थर्ड होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसको टमाटो से किया है, तो अगर आपने उस प्योर कल्चर को टमाटो के हेल्दी प्लांट के अंदर आपने इनोकुलेट किया, तो वहां पर वो सेम सिम्टम शो करना चाहिए जैसे पहले किया था। तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ये, हम ये श्योर हो पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर पैथोजन है यही उस डिजीज को कॉज कर रहा है। एंड द फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पोस्टुलेट दिया, दैट वाज री आइसोलेशन, कि अब हम जो वो नए प्लांट में जिसमें हमने इनोकुलेट किया है जहां पर सिम्टम्स आए हैं, वहां से हम दोबारा उसे रीआइसोलेट करके देख सकें कि वो सिमिलर सेम ही पैथोजन है या कुछ और भी इसमें आ रहा है। ओके, सो दिस वाज कॉच पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट scientist is TJ Burrell, that I told you earlier only, that TJ Burrell in 1882 he firstly proved that the fire blight of apple and pear was caused due to the bacteria. So this was the first plant bacterial disease that was discovered, and it was by TJ Burrell. And fire blight of apple and pear, it is caused due to the Arvinia amylovora. Okay, after that the important one is, I think, Christian Graham, C. Graham. So in 1894, Christian Graham gave the technique to differentiate between the gram positive and gram negative bacteria, and it is known as gram staining. So related to gram staining, uh, the different that substances or chemicals we used is like primary stain. What is the primary stain here? That is the crystal violet. Okay, then we use uh, moderant, that is iodine. Decolorizer, decolorizer we use 95% ethyl alcohol. And the secondary, or we can say the counter strain, is safranin. Okay, so the gram positive bacteria will give the crystal violet color, but the gram negative bacteria will give the pinkish or reddish color. तो ये ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर सबको पता है, क्रिस्टन ग्राम ने दिया 1884 के अंदर। प्राइमरी स्टेन हमारा क्रिस्टल वॉयलेट होता है, फिर मॉडरेंट आयोडीन डालते हैं बेसिकली उस डाई को फिक्स करने के लिए। फिर डी कलराइजर के लिए हम इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं 95%, और सेकेंडरी स्टेन जो काउंटर स्टेन होता है दैट इज सेफ्रेनिन। तो ग्राम पॉजिटिव में हमें जनरली वॉयलेट कलर दिखता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें ऑरेंज रेडिश कलर जो है वो हमें दिखता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक आपके साइंटिस्ट रहते हैं वो होते हैं वॉक्समैन। वॉक्समैन की इंपॉर्टेंस कहाँ है? वॉक्समैन इज रिलेटेड टू दी एंटीबायोटिक। ओके, सो द एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस, सो दिस वाज आल्सो बाय द वॉक्समैन। गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इज द, आई थिंक, E.F. Smith. We have you already studied. Yeah. T. Watt and Harrell. T. Watt and Harrell कहाँ से किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? Phage is related to virus, and that particular virus that infects the bacteria, they are known as the bacteriophages. तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफाज होते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था? टिवॉट और हेरल ने डिस्कवर किया था। Okay, so when we talk about the taxonomy, when we talk about the classification, so basically we use two different manuals. First is the Burgess Manual of Determinative Bacteriology. I'm not able to write like complete things, so you just listen. Determinative Bacteriology, and this was published in 1923. So the determinative bacteriology was in 1923, and second one is the systematic bacteriology, whose first edition was published in 1984. So determinative का 1923 के अंदर है, और दूसरी थी systematic. Systematic जो है इसका पहला एडिशन जो आया था ये आया था 1984 के अंदर। ओके,
तो ये क्लासिफिकेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो यूज की गई थी, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी बाद में मिला हुआ है, सो दैट वाज पेनिसिलिन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। तो 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन जो है इसकी डिस्कवरी की थी। और पहले ये जो पेनिसिलिन था दैट वाज अर्लियर आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, लेकिन नाउ इट इज फ्रॉम द पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ओके, so earlier it was from the penicillium notatum and now it is from the penicillium chrysogenum. Okay, so basically this is known as the miracle drug. Penicillin is known as miracle drug. It was like used in during the World War, so it was the known as the miracle drug. Okay. Now next important one is the we have studied the Waxman and streptomycin antibiotic was also discovered by Waxman only. Next is related to the transformation of recombinations in bacteria. Okay, so in bacteria we used to study three different phenomena. First is transformation, second is conjugation, and third one is the transduction, right? So transformation, it was given by Griffith, okay, in 1928, and he studied because we learned, हम किसका पढ़ते हैं वो rat वाला experiment, mice वाला experiment पढ़ते हैं, pneumonia हो जाता है उसमें, so he did this study on the streptococcus pneumoniae. Okay, next one is the conjugation. Conjugation was given by Lederberg and Tatum in 1946. Okay, and he studied on the E. coli. Fine. Third one is transduction. In conjugation, what is there is a role of पिलाई. तो पिलाई की मदद से जो F प्लाज्मिड, इसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, यानी कि कॉन्जुगेशन के अंदर दो बैक्टीरिया जो होते हैं ये कांटेक्ट में आते हैं, एंड देन by coming in contact the genetic material got transferred. In transformation, the free any sort of DNA or can be transformed into the genetic material of bacteria. In conjugation, there is a need for coming in contact of the two bacteria, and in the transduction, we use the viruses, or we can say we use the bacteriophage to transfer the bacteria. So that was transduction, and transduction was given by Zinder and Lederberg. Okay, it was given by Zinder and Lederberg. Next important scientist is M.K. Patel. So he is known as father of Indian plant bacteriology. Father of Indian plant bacteriology. Father of Indian plant bacteriology हम किसे कहते हैं? M.K. पटेल को कहते हैं. ओके, चलो अब इन्होंने ही क्या किया था, स्कूल स्टार्ट किया था प्लांट बैक्टीरियोलॉजी का एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे. सो ही ओनली स्टार्टेड द स्कूल ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे. ओके, now we have studied this Lederberg. Na? Lederberg also gave the Lederberg also gave the replica plating technique, and Lederberg also gave the term plasmid. So there are much contributions of Lederberg. एक तो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया 1928, कॉन्जुगेशन लेडरबर्ग एंड टैटम इन 1946 इन इकोलाई, ठीक है, और इन ट्रांसडक्शन इट वाज गिवन बाय जिंदर एंड लीडरबर्ग इन 1952. Lederberg also gives the Lederberg gives the replica plating technique, and Lederberg also coined the term plasmid. ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक होता है हमारे पास स्टॉल्प. Stolp gave Delovibrio. Bacteria that infect bacteria are Delovibrios. Basically, they infect the gram-negative bacteria. They are Vibrio, that means they are comma-shaped bacteria. Okay. Next is the question could be asked about related to the hypersensitive response. So this hypersensitive response was given by Clement. Hypersensitive response was given by Clement. So Clement gave the hypersensitive response. Next important is the discovery of mycoplasma that we used earlier. We studied also that Dewey. Dewey gave basically the mycoplasma-like organism, Dewey et al. And Davis gave the spiroplasma.
Okay, so Dewey gave mycoplasmas or phytoplasmas, and Davis gave the spiroplasma. Other than that, the important one is the Dye, Dye et al. Dye gave the Pathover. क्योंकि जब आप बैक्टीरिया का कोई नाम लिखते हो, Xanthomonas campestris, Pathover, Malvacearum, सीरम, so ये Pathover जो यूज किया गया, that was given by Dye. Okay, so this was few of the important scientists that you should remember. Now, now we'll begin with the morphology of the bacteria. We'll talk about the structure of bacteria. See, when we talk about the structure of bacteria, so structure of bacteria, you can see different layers in that. So firstly, when we see the cell envelope over here, okay, so there is cell wall, this is cell membrane, outer one is the cell wall, and there is a slimy or the hard around surrounding layer around it also, that is known as the capsule. Okay, so there is cell wall and cell membrane. Basically, two main cell envelopes are there. So when we talk about the cell wall, so the cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan. Okay, and in case of archaebacteria, when we say that it is made up of the pseudopeptidoglycan. तो बैक्टीरिया के अंदर तो सेल वॉल किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, आर्किया के केस में होती है सूडोपेप्टिडोग्लाइकन की. अब जब हम ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं तो मेजरली द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल. सो basically we can study like here only the difference between gram positive and gram negative cell wall. Okay, so in gram positive there is multi-murine layer. Okay, there is a multiple murine layer of, here the murine layer is single only. Here the teichoic acid is present. Here the teichoic acid is absent. Okay, here glycolipid is present. Here glycolipids are not present. Okay, these gram positive bacteria, these stains crystal violet and they stain red. And other than that, most of the gram positive bacteria are spore forming. They are non-spore forming. Mostly they are non-spore forming. There is a exception that we say is Neisseria. मोस्टली ये नॉन स्पॉर फॉर्मिंग होते हैं. इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो होता है नेर्सिया. ठीक है, ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते हैं. एक नीरसिया होता है जो स्पोर जो है वो बनाता है. अब ग्राम नेगेटिव में सब कुछ एब्सेंट है. सो व्हाट इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज द प्रेजेंस ऑफ द लिपोपॉलीसेकेराइड. Okay, so the lipid content is high in the gram negative bacteria. Fine. So murine is monolayered. There is lipids present, lipopolysaccharide is present. There is an extra outer membrane present in the gram negative bacteria. There is only an inner cell membrane, but there is an inner cell membrane also and outer cell membrane also. So two type of cell membrane are present in the gram negative bacteria. Gram positive में एक ही cell membrane होती है, gram negative में एक extra cell membrane present होती है. और इसी एक extra cell membrane की presence की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस जो होती है वो ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होती है. ठीक है, वो उसे पेनिट्रेट करने से रोक लेते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ग्राम नेगेटिव के पास. ओके, so basically what is the role of this cell wall? We know that cell wall is basically for the protection, it is for the covering, it gives the strength to the bacteria, it helps in the movement, etc, etc. Okay, now this murine, now question is asked related to murine also. So this murine, or we can say the cell wall, this is basically a heteropolymer. Heteropolymer of what? Two sort of polysaccharides are present that act as the backbone. तो दो पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? नाग एंड नाम. नाग एंड नाम का हेट्रोपॉलीमर होता है, तो नाग एंड नाम ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं. सो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं म्यूरिन के अंदर. सो इट इज अ हेट्रोपॉलीमर, टू डिफरेंट्स आर प्रेजेंट. ओके, सो based on and these are the polysaccharides, nag and nam. Now during the formation of this murine also, they are cross linked by the peptide chains. Okay, so basically murine is formed with the heteropolymer of this polysaccharide and it is cross linked with the पेप्टाइड चेन्स. अब ये पेप्टाइड चेन्स किस तरीके से क्रॉस लिंक्ड है, इसके हिसाब से दो तरीके के म्यूरिन होते हैं, म्यूरिन ए एंड म्यूरिन बी.
ठीक है। म्यूरिन ए कंटेन्स द बीटा 3,4 linkage. म्यूरिन ए कंटेन्स 3,4 linkage and B contains 2,4 linkage. ओके, सो बेस्ड ऑन दी क्रॉस लिंकेज ऑफ द पेप्टाइड चेन्स, की पेप्टाइड चेन्स कैसे इन दोनों नाग और नाम को क्रॉस करती हैं, उसके बेसिस पर दो तरीके के म्यूरिन होते हैं, एक ए होता है एक बी होता है। ए के अंदर 3,4 लिंकेज होती है और बी के अंदर बीटा 2,4 लिंकेज होती है। ठीक है, ज्यादातर जो रहते हैं वो म्यूरिन ए रहता है, ये ज्यादा कॉमन होता है। अच्छा, ये हो गया आपके पास सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, दूसरा सेल एनवेलप क्या होता है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सो सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड phospholipid. So cell membrane is basically composed of protein and phospholipid. So what is the function of this cell membrane? So basically we tell cell membrane as a selectively permeable membrane. So it maintains the osmotic pressure, it carries out like active transport site. Okay, so ये क्या क्या करती है हमें पता है, इसके अंदर osmotic pressure को maintain करती है, ट्रांसपोर्ट साइट होती है, यहाँ से टॉक्सिन भी सिक्रिएट होते हैं। दीज आर फ्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, next that when these are the cell envelope. Okay, so there are some external structures that are associated with this cell envelope. So first is, one is flagella, one is pili, and one is fimbriae. Okay, smallest, then medium, then largest as in the size. Okay, so this is the smallest, this is maximum in number, then few number and like very few number. Okay, so now this flagella and pili, these both are the extension of सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों सेल मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड होते हैं, ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन है तो ये यहीं से इस तरीके से फ्लैजिला जो है ये निकलता है, पिलाई जो है प्रेजेंट होते हैं। सो फ्लैजिला एंड पिलाई दीज बोथ आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब फ्लैजिला बेसिकली होता है क्या, ये एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, तीनों ही जो होती है ये प्रोटीन से बनी होती है। तो फ्लैजिला जो होती है वो कौन से प्रोटीन से बनी होती है, फ्लैजिलिन से बनी होती है। पिलाई किससे बनी होती है, पिलाइन से बनी होती है। ठीक है, ये फिम्ब्रेन आ जाता है। फ्लैजिला का मेनली जो फंक्शन होता है किसमें होता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, locomotion. Okay, and this basically pili, it play a role in the conjugation. Okay, the fimbriae is not having much of the importance, it just helps in the attachment. Okay, it helps in the adherence of the bacteria, it helps in the attachment of the bacteria. Now this flagella and fimbriae both are present, these are present in both gram positive and gram negative. The exception is only one, that pili is present only in the gram negative bacteria. Other two are present in both gram positive and gram negative bacteria. Okay, flagella जो होता है, this is present in both eukaryotes and prokaryotes, but these two are present just in the prokaryotes. Okay, चलो, next important thing about, if we are studying about the flagella, so we just give a brief structure of this flagella. So this flagella contains basically three parts. Okay, three parts are present. So at the base it is the basal body. This basal body is basically attached to the cell membrane. ओके, इस बेसल बॉडी के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, एक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं बेसल बॉडी में। ठीक है, दीज बेसल बॉडीज आर मेड अप ऑफ द रिंग्स, और इनके बाहर क्या होते हैं, मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। याद हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। एक जनरल सा आइडिया ले लो कि तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी होता है, उसके बाद हुक आ जाता है, उसके बाद आता है इसके अंदर फिलामेंट। ठीक है, तो जो फ्लैजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये फिलामेंट पे प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक अपेंडेज जो होता है, तो ये बेसिकली फिलामेंट होता है। तो फ्लैजिला कंटेन्स थ्री पार्ट, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। द फ्लैजिलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फिलामेंट पार्ट ओनली. The basal body basically contains the rings they contain. Okay, so different type of ring are present, that is very easy to learn, that is L, P, C and MS. Okay, this MS is just different, other we can learn. L is related to lipopolysaccharide, PP is related to peptidoglycan, C is related to the cytoplasm. Okay, so these rings are adhered or attached to these particular areas. So L, P, C and MS. MS is also basically to the cytoplasmic membrane. So L is related to lipopolysaccharide,
P is related to peptidoglycan, C is related to cytoplasm, and MS is related to cytoplasmic membrane. ओके, फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है फिलामेंट में प्रेजेंट होता है. अच्छा, अब फ्लैजिला के क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम बैक्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला. तो फ्लैजिला के हिसाब से पहला क्या होता है हमारे पास, मोनोट्राइकस. तो फ्लैजिला के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज ट्राइकस. मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला. तो सिंगल पोलर फ्लैजिलम इट इज प्रेजेंट इन ज़ेंथोमोनास. Okay, this is bacteria single polar flagellum is present. This is in the Xanthomonas. Now, next is the Amphitrachus. Amphitrachus means on the opposite side flagella present. This is present in Pseudomonas. Next is Cephalotrichus. Cephalotrichus means एक तरफ से फैल रखा है, like this bunch of flagellae on the one side. So it is present in Pseudomonas fluorescens. Okay, next is Lophotrichus. So Lophotrichus means the presence of the tuft of flagella on both sides. This is present in Spirillum. Next is Peritrichus. Peritrichus means the flagella is present all over the body. Okay, flagella is present all over the body. It is present in Arvenia. And the last one is the subpolar flagella. The complete polar flagella is not present, that is present in Agrobacterium. Okay, now we have studied the cell envelope, cell wall and cell membrane. We have studied the external structures. हमने देख लिया कि flagella है, fimbri है, pili है. अब इसके अंदर मैंने कहा था कि इसके बाहर भी एक कैप्सूल की लेयर होती है. So basically कैप्सूल लेयर का रोल क्या होता है कि ये विरुलेंस में भी रोल प्ले करती है इसके अंदर. ठीक है. सेकेंड चीज इज दैट इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया अगेंस्ट द डिफेंस ऑफ होस्ट. So this capsule prevent the bacteria. It surround the cell. It protect the bacteria against the host defense. Okay. Now, next important thing is like the internal structures that are basically present inside the cytoplasm. Okay, in cytoplasm, what are present? There is a presence of nucleoid, or we can say there is a presence of genophore. So this is the DNA of the bacteria. We use the term genophore, and this genophore term was given by Riss. Riss gave the term genophore. This is the DNA of the bacteria. This is basically how is the DNA present in the bacteria. कैसा DNA होता है इनके अंदर प्रोकैरियोट्स में? Circular DNA present होता है. ठीक है. Second important thing is the presence of ribosome. So it is a prokaryote. So there will be 70S ribosome present. Ribosome basically consists of RNA and proteins. Okay, other than that, there is a presence of inclusion bodies. So these inclusion bodies basically help in the storage of the food. So what type of food storage are there? Basically, the important one, if the single option is given, that will be polybeta hydroxybutyrate. Polybeta hydroxybutyrate. And second one is the glycogen. Okay, so this is basically the polymer of fat. फैट का पॉलीमर होता है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. दूसरा होता है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है. तो ये इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जिनके अंदर स्टोरेज में हेल्प करती है. अदर देन दैट बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. प्लाज्मिड हमें पता है क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसके पास खुद से रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है. ओके, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. इट कैन replicate itself autonomously. खुद से replicate कर सकता है ये. So this is also DNA. So we use the plasmid to insert the foreign gene. Okay, तो plasmid का हम use करते हैं कुछ अलग से foreign gene लाना हो, स्पेशली जो हम पढ़ते हैं that is like against the antibiotic resistance. Okay, next and last one part is in it is gas vesicles. So gas vesicles basically they are the proteins and it help the bacterial cells to float. So फ्लोट करने से क्या हो जाएगा, लाइक कुछ अगर जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो ये जो गैस वेसिकल्स होते हैं ये उन्हें बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. Okay, so this is the basically structure of bacteria. So we learned about the bacteria, and one more example in like flagella you can learn about the Atrichus, like which bacteria do not have any sort of flagella. So the answer will be Xylella. Xylella do not have any sort of flagella. It is Atrichus. Okay, chalo. Now next is the
when we like generally discuss about the shape of bacteria na, so shape of bacteria, like most of the bacteria are generally rod shaped bacteria. Rod shaped bacteria are most common. Okay, other than that, what type of bacteria are present? Spherical rod shaped bacteria, we called it as bacillus. रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? बेसिलस कहते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। ओके, कॉमर शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? विब्रियो बोला जाता है। अब इनके अंदर क्या होती है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस बोल देते हैं हम, कि अगर सिंगल रोड शेप मान लो प्रेजेंट है तो उसको बोल दिया जाएगा मोनोबैसिलस। ठीक है, दो रोड शेप्ड इकट्ठे प्रेजेंट है उन्हें क्या देते हैं? डिप्लो वर्ड यूज करते हैं टू के लिए। ओके, जब चेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखो अगर कोकस भी मान लो अगर स्फेरिकल है और वो चेन में प्रेजेंट है, या बेसिलस है वो चेन में, जैसे ये कोकस चेन में हो गई, ये रोड शेप्ड चेन में होते हैं, तो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, सो फॉर चेन्स वी यूज द वर्ड स्ट्रेप्टो, so we will say streptococcus or streptobacillus. Okay, now other than that, this is changed, and when it is present in the sort of grape like structure, like irregular bacteria are present in a grape like bunch like structure, it is known as staphylococcus or staphylobacillus. Staphylo word is used like grape like bunch like irregular structure is present. Okay, and when they are arranged in the sort of cube, tetrad form, okay, this is cube form, it is arranged, then we use the word sarcina. Okay, single, mono, double, diplo, in the form of chain, strepto, in the form of bunches, irregular, that is staphylo, and in the form of tetrad or cubic form, that is sarcina. ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को इंपेक्ट करते हैं, दैट आर डेलो विब्रियो, तो विब्रियो इज बेसिकली कॉमर शेप्ड हो गया वो, और ये डेलो विब्रियो जो होते हैं ये भी मोनोट्राइकस होते हैं, इनके पास भी सिंगल फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, अब जो आपके डिफरेंट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल जेनेराज होते हैं, अगर उनकी कुछ खास बात करते हैं, लाइक सबसे पहला मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दैट इज ज़ेंथोमोनास। सो ज़ेंथोमोनास इज बेसिकली अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो ज़ेंथोमोनास सूडोमोनास एक साथ पढ़ लेते हैं हम। ज़ेंथोमोनास एंड सूडोमोनास, दीज आर द टू मेजर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट कॉजेज द डिजीज। सो ज़ेंथोमोनास एंड सूडोमोनास बोथ आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। Okay, so this is having a single flagella, and this we have it is having the amphitrachus, or we can say like in cephalotrachus, तो एक से ज्यादा flagella present होते हैं, more than one flagella is present. So in the case of Xanthomonas, it is having the yellow color colony. Okay, we say that it is having the yellow color colony, it is gram negative. Okay, and it is having the oxidative metabolism. ओके, ज़ेंथोमोनास क्या करता है? येलो कलर की कॉलोनी बनाता है, ये डिफ्यूज नहीं हो सकता, ये ग्राम नेगेटिव होता है, ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करता है। ऑन दी अदर केस, अगर हम सूडोमोनास की बात करते हैं, तो सूडोमोनास भी रोड शेप बैक्टीरिया है, एक से ज्यादा फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट है, ये भी ग्राम नेगेटिव होता है, लेकिन ये कैसे बनाता है? थोड़ी ग्रीनिश कॉलोनी बनाता है, ये डिफ्यूज हो सकता है, ये फ्लोरेसेंस शो करता है, और ये भी क्या करता है, मतलब ये डिफ्यूजिबल पिगमेंट होता है कि ये कर भी सकता है, कोई पिगमेंट नहीं भी शो कर सकता है मेन, और ये भी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करता है। तो ज़ेंथोमोनास डिफ्यूज नहीं हो सकता, ये डिफ्यूज हो सकता है, ये फ्लोरेसेंस शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एर्विनिया, okay, which we study like in the soft rot mainly. So this is also the rod shaped bacteria, ये भी रोड है। एग्रोबैक्टीरियम इज ऑल्सो रोड शेप्ड, राल्स्टोनिया इज ऑल्सो रोड शेप। तो मैक्सिमम जो होते हैं कौन से होते हैं? रोड शेप्ड ही होते हैं। ठीक है, क्लेविबैक्टर इज मोर और लेस रोड शेप्ड ओनली, तो ये क्लब शेप होता है या रोड शेप्ड के होते हैं। जाइलेला जो होता है ये भी रोड शेप्ड होता है। सिर्फ एक जो स्ट्रेप्टोमाइसिस पढ़ते हैं हम, दैट इज ओनली अ फिलामेंट शेप्ड। अदर मोस्टली सारे ग्राम जो ये प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं रोड शेप्ड ही है। तो ये चीज तो क्लियर होगी हमें, ज़ेंथोमोनास, सूडोमोनास, एर्विनिया, एग्रोबैक्टीरियम, राल्स्टोनिया, क्लेविबैक्टर, ठीक है, जाइलेला हो गया। सिर्फ एक स्ट्रेप्टोकोकस जो है दैट इज फिलामेंटस, अदर ऑल आर दी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हम मोटिलिटी में डिफरेंस देखें इसके अंदर, तो ज़ेंथोमोनास के पास फ्लैजिला होता है सिंगल, हमें पता है। सूडोमोनास के पास भी होता है मोर देन वन फ्लैजिला। इर्विनिया आल्सो वी स्टडीड इट इज हैविंग द पेरिट्राइकस फ्लैजिला, दैट मींस इट इज आल्सो मोटाइल। एग्रोबैक्टीरियम वी स्टडीड इट इज अ सबपोलर फ्लैजिला प्रेजेंट। क्लेविबैक्टर इट कुड बी मोटाइल, इट कुड बी नॉन मोटाइल। ओके, so क्लेविबैक्टर it could be motile,
इट कुड बी नॉन मोटाइल। ओके, राल्स्टोनिया जो होता है इसके पास भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज नॉन मोटाइल, जाइलेला इज नॉन मोटाइल। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिल मोटाइल भी नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है इसकी रोड शेप्ड भी नहीं है, सो इट इज अ डिफरेंट एक्सेप्शन वी कैन रिमेंबर इजीली। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है इसकी फिलामेंटस शेप होती है, ये नॉन मोटाइल होता है। जाइलेला जो होता है ये होता रोड शेप्ड है लेकिन ये भी नॉन मोटाइल होता है। तो नॉन मोटाइल के अंदर हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस और जाइलेला आ जाते हैं और कभी कभी क्लेविबैक्टर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर इनके करेक्टर हम देखते हैं तो जेंथोमोनाज हमने देख लिया कि येलो कलर की कॉलोनी बनाता है, डिफ्यूज नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। सूडोमोनास की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लोरोसेंस शो करता है ग्रीन कलर का, पिगमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ग्राम नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर इर्विनिया की। इर्विनिया जो होता है ये क्या रहता है, ये नॉन पिगमेंटेड रहता है, ग्राम नेगेटिव है, इसका फर्मेंटेड मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ज़ैंथोमोनास एंड सूडोमोनास के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म हो रहा है लेकिन अर्वीनिया का फर्मेंटेड मेटाबॉलिज्म होता है। वो पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों लेकिन ये नहीं करता है पिगमेंट प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है सब पोलर फ्लैजिला है, रॉड शेप्ड है, इसके भी क्या रहते हैं, पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। क्लेविबैक्टर जो है ये भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। ये क्लेविबैक्टर कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है। राल्स्टोनिया जो है ये भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। जाइलेला जो है ये भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले जो होते हैं वो होते हैं ज़ैंथोमोनास। सूडोमोनास कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, और एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये तीन ही ऐसे होते हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इसको मैं एक बार एक शॉर्ट के अंदर इकट्ठे हम देखें इसमें, तो देखो ज़ैंथो, सूडो को मैं हाईलाइट ऐसे कर रही हूँ कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, और स्ट्रेप्टो, ये तीन ही क्या करती हैं, पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ऑल आर रोड शेप्ड एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस। ओके, सारे रोड शेप्ड है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं है। नेक्स्ट इज ज़ैंथो, सूडो, इर्विनिया, एग्रो, राल्स्टोनिया। ऑल आर मोटाइल। नॉन मोटाइल कौन से हैं, क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ज़ैलेला। ओके, क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस और ज़ाइलेला जो होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, एल्स आर मोटाइल। ओके, पिगमेंट्स हो गया, शेप के हिसाब से हो गया, ठीक है, मोटिलिटी के हिसाब से हो गया। अब आता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के केस के अंदर मोस्टली सारे के सारे जो होते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है। फर्मेंटेड मेटाबॉलिज्म जो है ये हमें किसके अंदर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एर्वीनिया के अंदर। एर्वीनिया इज हैविंग फर्मेंटेड मेटाबॉलिज्म, ऑल आर हैविंग द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्लेविबैक्टर इज ग्राम पॉजिटिव, ऑल आर जनरली ग्राम नेगेटिव। Okay, so these are few of the characters of different major genera that we study, plant pathogenic bacteria genera. Okay, now next important one point is, okay, this basal body is also known as blepharoplast. So if the name is given, so that is related to flagellar structure only. ठीक है, चलो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ये फर्क होता है। और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये जनरली क्या बनाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ये एंडोटॉक्सिन बनाते हैं। ओके, ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं इनके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जनरली बीएससी पढ़ते हैं, बैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम, कोराइनी बैक्टीरियम। ठीक है, ये दीज ऑल आर, एंड मोस्ट ऑफ दिस आर ज़ैंथोमोनास, सूडोमोनास, इर्विनिया, साल्मोनेला, राल्स्टोनिया, दीज ऑल आर ग्राम नेगेटिव। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होती है, अच्छा इसमें एक मीजोजोम प्रेजेंट होते हैं दैट आर बेसिकली दी फोल्डिंग और इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली। ठीक है, मीजोजोम इज बेसिकली एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो यानी रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं मीजोजोम्स। ओके, नाउ next important thing that we have to learn is about the एंडोस्पोर्स। ठीक है, एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? एंडोस्पोर्स आर बेसिकली दी रेजिस्टेंट स्पोर्स और रेस्टिंग स्पोर्स वी कैन से। रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जनरली बनाता है एंडोस्पोर्स को। ठीक है, और इसके अलावा इनके अंदर जो ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं किस किस के लिए, जैसे हीट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं ये। ओके, हीट के लिए काफी ज्यादा, ये एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बनाई जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं एडवर्स कंडीशन के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो बनाता है। तो इनके अंदर एक ऐसा क्या केमिकल प्रेजेंट होता है जो इनको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या ये जो टफनेस है ये किसकी वजह से होती है? तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है डिपिकोलिनिक एसिड। डिपिकोलिनिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है जो इनके अंदर इनको हेल्प करता है ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब ये जो बनता है ये लॉग फेज के एंड में बनता है, क्योंकि अब उनके अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है कि लॉग फेज तक तो क्या होता है इसके अंदर। अब लॉग फेज में अभी मैं इसका ग्रोथ साइकिल बताती हूँ। देखो ग्रोथ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले आता है लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज और फिर डिक्लाइन फेज। तो ये होता है लैग, फिर होता है लॉग फेज, फिर होता है स्टेशनरी, and then comes the decline phase. So simple thing is that lag phase because means here the bacteria comes to a new environment, so he is adapting itself. तो यहाँ पे क्या रहता है कि ग्रोथ रेट या सेल डिविजन रेट जो रहता है वो थोड़ा स्लो रहता है यहाँ पे, बिकॉज इट इज अडेप्टिंग टू द न्यू एनवायरमेंट। ओके, सो दैट इज अ लैग फेज। लॉग फेज इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सपोनेंशियल फेज। सो एक्सपोनेंशियल फेज हियर द बर्थ रेट इज मच मोर देन द डेथ रेट। Here the multiplication rate is exponential. It is multiplying to a great extent. तो बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन रेट रहता है, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी जल्दी करता है। बर्थ रेट जो होती है वो डेथ रेट से बहुत ज्यादा होती है। लॉग फेज होगी, एक्सपोनेंशियल फेज होगी, ग्रोथ बढ़ रही है बहुत ज्यादा। फिर एक टाइम के बाद क्या आ जाता है, स्टेशनरी फेज आ जाती है, कि जहाँ पे बर्थ इज इक्वल टू डेथ की स्टेज हो जाती है। जितना बर्थ रेट हो रहा है उतना ही डेथ रेट हो रहा है। एंड अल्टीमेटली लास्ट में जब क्या होती है कि न्यूट्रिएंट खत्म होने लग जाते हैं, उनको डिवाइड और नहीं हो पाते और न्यूट्रिएंट नहीं बन पा रहे, टॉक्सिन्स वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, सो दैट कम्स द डिक्लाइन फेज, जहां पर डेथ रेट इज मोर देन दी बर्थ रेट। सो पहले एक लैग फेज होता है जहां पर वो अडेप्ट करता है, फिर वो जब एक बार अडेप्ट कर गया देन वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, हियर द बर्थ रेट इज मच मोर देन द डेथ रेट। फिर एक पीरियड आ जाता है जो होता है स्टेशनरी स्टेज। स्टेशनरी स्टेज के अंदर बर्थ और डेथ का रेट सिमिलर होता है, एंड देन केम्स द डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज और डेथ फेज, हियर द डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, बिकॉज हियर द nutrients are depriving, nutrients are lacking, the toxins are accumulating, जिसकी वजह से वहां पे डेथ ज्यादा हो रही है और बर्थ कम हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉग फेज जब खत्म होने वाला होता है, कि जब ऐसा हो रहा है कि हाँ अब स्ट्रेस आने वाला है, अब हमें मैनेज करना पड़ेगा, इस कंडीशन के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मेनली काम यही होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी एडवर्स कंडीशन। ओके, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आती है आपकी, वो आती है प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, प्लाज्मिड्स आर बेसिकली दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड इज द एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड दिस इज आल्सो नोन एज द फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ओके, एफ प्लाज्मिड इज आल्सो नोन एज द फर्टिलिटी प्लाज्मिड। सो ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स का रोल आता है कि जब कॉन्जुगेशन होती है। ओके, तो इसके अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन के टाइम पे ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो ये रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। नाम से पता लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो होते हैं इनका रोल क्या होता है, इट कैरीज द रेजिस्टेंट जीन। Okay, so it helps the bacteria to resist or to defend itself against some stressful condition. तो ये बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस जीन कैरी करते हैं, तो उन्हें हम रेजिस्टेंस प्लाज्मिड बोल देते हैं। अगला एक होता है बैक्टीरियोसिनोजेंस, या जिन्हें कॉल प्लाज्मिड बोला जाता है या कॉल फैक्टर बोलते हैं।
तो ये क्या होते हैं बेसिकली, इनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स बनाते हैं। उन टॉक्सिक प्रोटीन्स को ही क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोसिन बोला जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोसिन बोलते हैं। बैक्टीरियोसिन क्या करते हैं कि दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, यानी कि वो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से बचा रहे हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियोसिनोजेंस या कॉल प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनके अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ टॉक्सिन प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोसिन्स कहते हैं। तो बैक्टीरियोसिन्स बेसिकली प्रोटीन होते हैं, टॉक्सिन प्रोटीन होते हैं, जो उस जिस बैक्टीरिया के अंदर बन रहे हैं वो उनको दूसरे बैक्टीरिया से ही प्रोटेक्ट करते हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया को ही मार देते हैं। अगला एक होता है इसके अंदर डीजेनरेटिव प्लाज्मिड। डीजेनरेटिव प्लाज्मिड जो होते हैं, ये एक ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ कंपाउंड्स को डीजेनरेट या ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी होती है। फिर एक होते हैं हमारे पास विरुलेंस प्लाज्मिड। विरुलेंस प्लाज्मिड किससे रिलेटेड हो गया, पैथोजेनिसिटी से रिलेटेड हो गए। अब जब भी कोई भी एक विरुलेंस प्लाज्मिड जो होता है वो किसी बैक्टीरिया के अंदर है, वो उस बैक्टीरिया को पैथोजन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस विरुलेंस प्लाज्मिड द बैक्टीरिया कैन बिकम द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो लाइक वी नो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस, तो इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। तो ये इसका एक विरुलेंस प्लाज्मिड हो गया। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस टीआई प्लाज्मिड ओनली द एग्रोबैक्टीरियम इज बिकमिंग द plant pathogenic. It is causing the tumor, it is causing the disease. Next is the cryptic plasmid. So cryptic plasmid is that these are the plasmids that whose phenotypic characters we don't know. Okay, these are unknown plasmids we can say. Okay, now we know the role of these plasmids. तो ये plasmids के जो examples हैं ये आप जरूर देख लेना इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल्स अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसके अंदर देखो एफ प्लाज्मिड आपके हो गए, इसके अंदर मोस्टली कॉन्जुगेशन के अंदर हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के केस के अंदर हो जाता है कि रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। जो बैक्टीरियोसिन्स होते हैं इसके अंदर एक मेन एग्जांपल आप ध्यान रख लो तो बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस के पास बैक्टीरियोसिन्स होते हैं, यानी कि कॉल प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। डीजेनरेटिव के अंदर आ जाता है, यानी कि कुछ ब्रेक डाउन कर सकते हैं सबस्ट्रेट। तो ये कौन करता है, एर्वीनिया कैरेटोबोरा करता है, क्योंकि ये सॉफ्ट रॉट कॉज कर देता है। एर्वीनिया कैरेटोबोरा causes the soft rot because it degenerate the pectins, it degenerate the cell wall components of the host. ठीक है, नाउ प्लाज्मिड्स की भी क्लासिफिकेशन हो गई आपकी। प्लाज्मिड्स का रोल हमें पता है मेजरली क्या क्या होते हैं। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो टर्म आपके पास अगली आती है दैट इज दी, एक होता है प्रोटोप्लास्ट, एक होता है स्फेरोप्लास्ट। ओके, एक होता है प्रोटोप्लास्ट, एक होता है स्फेरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट और स्फेरोप्लास्ट जो है इसका सिंपल सा ध्यान रखो। प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से रिलेटेड है, स्फेरोप्लास्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलेटेड है। ओके, प्रोटोप्लास्ट के केस में यानी ग्राम पॉजिटिव के केस के अंदर क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है। तो सेल वॉल जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगी उसके बाद का जो पार्ट ग्राम पॉजिटिव का बच जाता है, तो दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। और ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सेल वॉल पार्शियली डाइजेस्ट होती है। तो ग्राम नेगेटिव से रिलेटेड क्या है, स्फेरोप्लास्ट, तो सेल वॉल पार्शियली डाइजेस्ट। ग्राम पॉजिटिव के लिए प्रोटोप्लास्ट है, सेल वॉल कंप्लीटली डाइजेस्ट। स्फेरोप्लास्ट इज फॉर द ग्राम नेगेटिव इन विच द सेल वॉल इज पार्शियली डाइजेस्टेड। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसके अंदर। और मोस्टली प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपने पढ़ लिया कि रोड शेप्ड होता है। बाइनरी फ्यूजन से इनका रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली। और इसके अलावा अगर आप कुछ याद कर सकते हो इसमें, तो लाइक कैप्सूल हमने पढ़ लिया, स्लाइम लेयर पढ़ लिया। तो कैप्सूल बेसिकली विरुलेंस फैक्टर भी इसका मेनली होता है कि कई सारे जो विरुलेंस के पैथोजेनिक जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम ये जो होते हैं फैक्टर्स, ये कैप्सूल के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। फाइन, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आती है डेलोविब्रियो। डेलोविब्रियो आर द थिंग दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट किल्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि घर परिवार के अंदर ही वो मारकाट चल रही है यहाँ पे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट किल्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज द डेलोविब्रियो। डेलोविब्रियो जो है ये हमने पढ़ा था, इसको डिस्कवर किसने किया था, स्टॉल्प ने किया था। ये टर्म भी स्टॉल्प ने दी हुई है। और
इसके अंदर ये विब्रियो है, तो यानी कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं कॉमा शेप्ड के होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, सिंगल फ्लैजुला के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसको अगर आप एक चीज से और याद रख सकते हो तो ये रिलेटेड है गंगा रिवर से। तो गंगा रिवर को जो क्लीन किया गया है इतना प्योर है क्योंकि वहां पे डेलो विब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको किल कर देते हैं। फाइन। चलो, एक ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी याद करो कब आई थी, 23 के अंदर, और सिस्टमैटिक जो आई थी वो उसका फर्स्ट एडिशन 1984 के अंदर आया था। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेटिव वाली है वो 1923 में पहला आया था और उसका लास्ट, उसके अंदर टोटल 9 एडिशंस थे। डिटर्मिनेटिव वाली में 9 एडिशंस थे, 1923 में पहला आया था और 94 के अंदर लास्ट आया था। जो सिस्टमैटिक वाला है उसका पहला जो है ये 84 के अंदर आया था। ठीक है, और लास्ट जो है वो 2012 के अंदर आया। तो इसके अंदर दो एडिशन में थे, पहले में 4 वॉल्यूम थे, दूसरे में 5 थी, यानी कि टोटल वो 5 हो 9 ही गए। उसमें 9 के 9 एडिशंस थे, इसके अंदर दो एडिशन में डिवाइड है। ठीक है, पहले वाले में 4 वॉल्यूम है, दूसरे वाले में 5 वॉल्यूम है। तो 1984 से लेकर 2012 तक चला है ये। अच्छा, इसके बाद कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, एंडोस्पोर्स बन सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस के अंदर कॉन्जुगेशन जो होता है ये हमने पढ़ा इकोलाई के अंदर होता है, इसमें कांटेक्ट में आना जरूरी है। ठीक है, सो टू बैक्टीरियाज when they come in the contact, the transfer of genetic material will occur through the help of pili or the conjugative or F plasmid. एंड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दिया था 1928 के अंदर। ठीक है, और ही स्टडीड अबाउट द स्टडीड इन दी निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ट्रांसडक्शन जो है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज जो है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है, एंड इट वाज गिवन बाय लेडरबर्ग एंड जिंदर इन 1952। दे वर्कड ऑन साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ओके, नाउ next important thing is that in just a second. Okay, so the growth of bacteria, when we used to measure the growth of bacteria, we used it with the help of hemocytometer. Okay, hemocytometer we'll use. Other than that, we can use the spectrophotometer also. Spectrophotometer works on the basis of turbidity present in the bacteria. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, लाइट वेवलेंथ वगैरह के ऊपर काम करता है सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हर एक कलर की एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ होती है। तो अंदर जितने भी माइक्रोबियल सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कुछ ना कुछ लाइट को अगर उनके ऊपर पड़ेगी वो लाइट को स्कैटर करेंगे, दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर कर देते हैं उसे। तो जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी यानी कि उतना ज्यादा अंदर नंबर जो है वो प्रेजेंट है। तो एक रेंज मान के चली जाती है कि जब 10⁻⁷ की रेंज तक पहुंच जाता है ना तो वो आपको कल्चर पूरा मिल्की ही दिखेगा, उसमें क्लाउडी सा दिखता है कल्चर। तो उस हिसाब से एस्टिमेट लगाया जाता है कि अंदर कितने ज्यादा बैक्टीरिया जो है, कॉलोनीज जो है वो प्रेजेंट है। हीमोसाइटोमीटर के अंदर हम कॉलोनीज काउंट करते हैं, तो इसकी जो कॉलोनी काउंट होता है दैट इज, इसकी यूनिट होती है CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, तो हेमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट उससे कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेसिकली डिपेंड ऑन द टर्बिडिटी। So in this, what basically happens is that the number of bacterial cells or number of microbial cells that are present, so they will scatter some amount of light when it will come to them, and more the number of scattering is there, more the number of biomass is there. So based on that, we are able to calculate the amount of bacterial cells present. Okay. Next point in it is, we'll study the classification at the end only. Okay. So one question is asked basically one time in the paper based on the resting spores produced. Okay. So that time the question was asked on the endospores and it was asked on the cyst. So endospores are basically produced, we know about by the gram-positive bacteria like Bacillus and Clostridium. Bacillus and Clostridium produces the endospore, resting spore. Cysts are produced by Azotobacter. Okay.
Next, the conidia. Conidia are produced by actinomycetes. Akinets are produced by blue-green algae, or we can say the cyanobacteria. Next, myxospore is produced by Myxococcus, and Delocyst is produced by Delovibrio. So these are few of the resting spores that are produced by specified bacteria. Now, based on the nutrition, when we like do different terms, so mostly the bacteria present, they are like photoheterotrophs. Okay, so this photo term is basically photo, we will use the photo term or we'll use here the chemo term. The photo term is used when we use when the bacteria uses the light energy to convert CO2 into the organic compound. When they use the light energy, we will use the term photo. And for conversion of the CO2 to the organic compound, when they use any chemical sort of compound, they use any sort of inorganic compound, then we will tell them chemo. Okay, so light or the inorganic substances, based on that, we'll use photo and the chemo term to convert the CO2 into the organic compound. And for the autotrophic and heterotrophic, we know that heterotrophic means they are dependent on some different uh, host, or they autotroph means that they can make their own food. So there are basically, the important one is the heterotroph. So there are different sort of heterotroph present. They could be saprophytic. Okay, saprophytic, the example will be Bacillus. Bacillus is saprophytic. Okay, then TB, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, it is parasitic. And we know Rhizobium, it is symbiont. So these all are heterotrophs, but a different kind of heterotroph present. So most of the bacteria is photoheterotrophs. Photo means they use the light, they use the photosynthesis, they use the light to convert CO2 into the organic compound, and they are heterotroph. Now heterotroph are of different types, that saprophytically it comes in the bacillus because they decompose it. Parasitic, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, and symbiotic relationship is present in the case of Rhizobium. Okay, one term is the siderophore. Siderophore in simple term is basically the iron chelating agent. ठीक है, अब इसमें होता क्या, पहले मैं इंग्लिश में बता रही, देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. तो सिडेरोफोर्स क्या होते हैं, दे ये एक आयरन चिलेटिंग यानी आयरन बाइंडिंग एजेंट हो गए. तो आयरन जो होता है ये बैक्टीरिया के लिए, इनके विरुलेंस के लिए, पैथोजेनिसिटी के लिए जरूरी एक होता है, कोफैक्टर की तरह काम करता है. यानी कई एंजाइम्स की जो काम होता है, कोई एंजाइम का काम क्या होता है, कोई रिएक्शन को फास्ट करवाना. तो कई एंजाइम के लिए जरूरी होते हैं ये आयरन की प्रेजेंस, कोफैक्टर होते हैं वो उनके. ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि जब आयरन वाली लिमिटिंग कंडीशंस होती हैं, जब आयरन की कमी आती है, तब उस केसेस में क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ज़ैंथोमोनास हो गया, सूडोमोनास हो गया, अर्वीनिया हो गया, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, उस आयरन के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं और उसे अवेलेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, जिससे कि वो उसे कम प्रेजेंस के अंदर भी अच्छे से यूटिलाइज कर सके खुद के लिए. तो इस तरीके के कंपाउंड्स को जो आयरन के साथ जाके चिलेट हो जाते हैं, उसके साथ बाइंड करके उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिडेरोफोर्स. Okay, so now I'll explain in English. Siderophores are basically the low molecular weight compounds. So basically, iron is essential as for the different metabolic processes in the bacteria. So they need iron. So when there is iron depriving condition, or when the iron is very less present, in that case there are some bacteria like Xanthomonas, Pseudomonas, they used to produce some molecules that basically chelate, or they bind with the iron and make it to the soluble form, available form it will convert. So these such compounds are known as siderophores, that will chelate with the iron under the iron depriving conditions, so that bacteria could utilize that iron for their virulence, for their pathogenicity, for their growth and survival. Okay, so these are basically siderophores. Now, next important term for you is gram staining. We already have studied. Then we know that for the identification that a particular symptom or lesion is due to the bacteria or not, we generally use the ooze test. Ooze test, you everyone know. After that, yes, for the classes like name na, to for the gram positive,
दैट इज फर्मिक्यूट्स. ओके, ग्राम पॉजिटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? फर्मिक्यूट्स यूज करते हैं. दिस हैज आल्सो केम इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स. एंड फर्मिक्यूट्स फॉर द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्रासिलिक्यूट्स फॉर ग्राम नेगेटिव. Gracilicutes for gram negative. Okay, for positive, firmicutes; for negative, gracilicutes. And in the case of mycoplasma like organism or phytoplasma, we use the term molecules. Okay. Now, next is the okay, one more thing I have to tell you. Just a minute. Yeah, one there is a L form bacteria are also there. So just you I'll give just a brief introduction of each and every term so that sometimes it's just about the match the following or it's just about like direct question could be asked. So if you know that what that term is related with, so you're able to answer. Like Delovibrio, okay, it is related to like the gram negative bacteria that kills the gram negative bacteria. So bacteriophage is the virus that kills the bacteria. So if you just generally know the term's meaning, you can answer certain type of questions. So there is the L form bacteria. Okay, so these L form bacteria also do not have any sort of cell wall present. So they do not have any cell wall. So they are irregular in shape. So basically, this L form, this L is basically related to the contribution, or they are giving like sort of respect to the lister. Okay, so because Lister is having like great contributions in sort of this bacteriology. So to giving the contribution or to giving the acknowledgement to Lister, the Lister Institute is present in London, and based on his name, the L form is given. And this L form bacteria are basically discovered by some Nobel name, like Emmy Nobel something scientist is there. उनके नाम पे इन्होंने मतलब इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है. और ये जो एल है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द लिस्टर. दे आर गिविंग लाइक एक्नॉलेजमेंट और गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट. दैट्स ऑल. ओके, आफ्टर दैट या फॉर स्टडिंग द बैक्टीरियल म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए फ्लक्चुएशन टेस्ट किया जाता है. और ये फ्लक्चुएशन टेस्ट जो है ये लूरिया एंड डेलबर्ग ने दिया हुआ. ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है इसको. तो बेसिकली कि अगर आपको बैक्टीरिया में म्यूटेशन है या नहीं है इसको पता लगाना है तो देन फ्लक्चुएशन टेस्ट इज डन. फ्लक्चुएशन टेस्ट इज बेसिकली गिवन बाय ल्यूरिया एंड डेलबर्ग. ओके, नाउ next important thing in it is okay, different sort of antibiotics we can see now. We'll different type of antibiotics important. Then we will studied about the mode of entry of different plant pathogenic bacteria. That is important. We'll study about RLBs, rickettsia-like organisms and rickettsia-like bacteria. And one of the most confusing things, that is the bacterial secretion system. Okay. After that, we could see, yeah, I think that, and the classification, I think that will be more than sufficient for this, for your revision. Okay, and some few things I'll tell like about the survival form. If it's very specified in the case of something, like some other very particular seed surviving bacteria or some are like soil surviving bacteria present, so we will just see that. Okay, then your bacteriology will be completed. Okay, let's go with the antibiotics. Okay, when we'll talk about the antibiotics, see, most of the antibiotics are from the streptomyces.
So Streptomyces is basically the largest genus from where most of the bacteria antibiotics are originated or they are isolated. Okay, so this Streptomyces is basically a gram-positive bacteria, and this gram-positive bacteria is having a large amount of GC content. It's a general thing, a general difference between gram-positive and gram-negative bacteria. That gram-positive bacteria are having the GC content very high as compared to gram-negative bacteria. It is more than like 60-65%. फाइन नाउ अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं अगर तो इसमें हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं ना तो फर्स्टली because mainly what is asked the mode of action is asked their major group is asked so first group is the beta lactams पहला कौन सा है बीटा लैक्टम्स तो बीटा लैक्टम्स के अंदर क्या आते हैं पीसी आती है बीटा लैक्टम्स में क्या आती है पीसी पीसी मींस पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन ठीक है पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन तो पीसीबी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हो आप तो पीसीबी पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन जो है किस में आ रहे हैं बीटा में आ रहे हैं बी में आ रहे हैं बीटा लैक्टम्स के अंदर आ रहे हैं अब ये जो होते हैं ये पेनिसिलिन पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है सिफेलोस्पोरिन सिफेलोस्पोरिन प्रोड्यूस करेगा तो ये सोर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है इनका बेसिकली जो मोड ऑफ एक्शन होता है दैट इज द सेल वॉल ब्रेकेज बिकॉज ये आपको वैसे ही याद रहता है बिकॉज पेनिसिलिन देखो किसके ऊपर एक्ट करता है सेल वॉल पे एक्ट करता है दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू स्टडी दैट द माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट द पेनिसिलिन why because mycoplasma like organism do not have the cell wall and penicillin act on the cell wall so they do not have the cell wall there will be no action of the penicillin on them so they are resistant against the penicillin so pcb the penicillin cephalosporin they are the category of beta lactams and they do the cell wall breakage. Okay, second category is the macrolides. So macrolides contain the erythromycin and carbomycin. Okay, so carbo and erythromycin are macrolides. These are. So this erythromycin is from the Streptomyces erythraeus and this carbomycin is from the Streptomyces halsteadi. ठीक है एरिथ्रोमाइसिन एंड कार्बोमाइसिन किस में आते हैं कार ठीक है 3 करोड़ की कार याद कर लो एरिथ्रो 3 करोड़ की जो कार है बहुत बड़ी कार होती है सो मैक्रो हो गए ना ये तो मैक्रो इन्वेस्टमेंट की है हमने 3 करोड़ की कार के ऊपर सो मैक्रोलाइट्स में क्या आ जाएंगे एरिथ्रो यानी कि 3 करोड़ तो कार्बो कौन सी कार ली 3 करोड़ की कार ली है तो ये मैक्रो हो गए हमारे ठीक है कार्बोमाइसिन कहाँ से आई है हॉल्स्टिडी से आई है तो इनका मेनली काम होता है 50s राइबोसोम फंक्शन पे ठीक है 50% तो इनका काम यही हो गया तो 50% जो इनका काम हो गया इन्होंने 3 करोड़ की कार ली है एक मैक्रो इन्वेस्टमेंट की है सो मैक्रोलाइड्स में आते हैं रिथ्रोमाइसिन कार्बोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन हेल्स्टिडी से होता है कार्बोमाइसिन वो ग्रीसियस से ही है इनका 50% काम हो गया तो इनका रोल क्या होता है 50s राइबोसोम के फंक्शन को रोकना ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी होती है इसके अंदर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स अमीनो ग्लाइकोसाइड्स अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में कौन से आ जाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन कैनामाइसिन स्ट्रेप्टो नियो कैना ठीक है स्ट्रेप्टो नियो कैना ये आ जाते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर ठीक है और ये क्या करते हैं 30s राइबोसोम के फंक्शन को रोकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से लिया हुआ है नियोमाइसिन जो होता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉडी से लिया हुआ है इसको याद करने का तरीका होता है कि कोई नए बंदे पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो फ्रॉड निकल सकता है तो नियोमाइसिन इज लाइक न्यू पर्सन should be could be a fraud person so neomycin is streptomyces fraudy and canamycin from the canamycetus so basically few names are like just from the name only so you don't have to remember that the different one you can remember okay neomycin is like fraudy fraud person okay so these work act on inhibition of 30s these are aminoglycosides next one is the tetracycline so this tetracycline also work on the 50s ribosome function only the tetracycline include the oxytetracycline or chlorotetracyclines okay next category is the polypeptide okay next one is the polypeptide so in polypeptide polymyxin G and second is the bacitracin
polymyxin G and bacitracin, it comes in the polypeptide. So this polymyxin G is from Bacillus polymyxa and bacitracin is from Bacillus subtilis. Subtilis and Bacillus polymyxa. So this polymyxin basically destroy the cytoplasmic membrane and Bacillus act on the murine biosynthesis. Okay, polymyxin destroy the cytoplasmic membrane and bacitracin destroy the murine biosynthesis. Okay, and the last category is the polyenes. Polyenes contain chloramphenicol, it contain amphotericin, it contain nystatin, it contain aureofungin, okay, it contain natamycin. So this aureofungin is antifungal antibiotic. ठीक है, antifungal antibiotic. Okay, so this chloramphenicol, amphotericin, nystatin, aureofungin, natamycin, these all are polyenes and they act on the 50S ribosome. It inhibit the function and the translocation of ribosomes. तो ये 50S राइबोसोम के फंक्शन उसकी ट्रांसलोकेशन को इनिबिट करते हैं. तो what different we have studied? We have studied like beta lactams. Beta lactams contain penicillin and cephalosporin (PCB) and they act on the cell wall. Okay, cell wall breakage. Then macrolides, macro investment for what? Like erythro, 3 crores car, carbomycin. Then it inhibits the 50% काम हो गया तो it inhibits the 50S ribosome. So 50S ribosome function is inhibited by the macrolides. They inhibit by tetracycline and they inhibited by polyenes. So all are inhibiting the 50S ribosome. 30S ribosome was done by aminoglycoside. Aminoglycosides में कौन आते हैं? Streptomycin, neomycin, kanamycin. ठीक है. पॉलीपेप्टाइड्स में आ रहे थे हमारे पॉलीमिक्सिन जी और बेसिट्रेसिन. पॉलीमिक्सिन जी जो होता है ये साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है और बेसिट्रेसिन जो होता है ये म्यूरिन के सिंथेसिस को डिस्टर्ब करता है. ओके. Now we'll talk about the mode of entry of different plant pathogenic bacteria. Okay. इंपॉर्टेंट देखेंगे जिस बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होता है इसके अंदर. ठीक है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंट्री के अंदर तो सबसे कॉमन क्या रहती है नेचुरल ओपनिंग इसकी? स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू आपके कौन कौन से जाते हैं? स्टोमेटा के थ्रू जाते हैं हमारे बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक यानी कि ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पैथोवर ओराइजी कोला. ये स्टोमेटा के थ्रू जाता है. सेकंड इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं दैट इज एंगुलर लीफ स्पॉट यानी कि ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन. ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो होता है किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पैथोवर, मालवेसियरम. तो ये एंगुलर लीफ स्पॉट जो होता है ये ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन होता है, ये भी स्टोमेटा के थ्रू एंट्री करता है. इसके अलावा सिट्रस कैंकर जो होता है ये भी स्टोमेटा के थ्रू करता है और कॉमन ब्लाइट इन बीन्स ये भी स्टोमेटा के थ्रू करता है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवर, फेजुलाई. तो एक हमने सीरियल क्रॉप देख ली, एक हमने पल्स क्रॉप देख ली, एक हमने फाइबर क्रॉप देख ली, एक हमने फ्रूट क्रॉप देख ली. तो स्टोमेटा में 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके. सीरियल्स में कौन सा है? बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस और राइजिकोला इसमें. सेकंड पल्सेस में कौन सी है इसके अंदर? कॉमन बीन के अंदर जो है हमारे पास कॉमन ब्लाइट, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवर, फेजियोलाई. थर्ड आ जाता है इसके अंदर हमारे पास फाइबर क्रॉप यानी कि एंगुलर लीफ कॉटन की हो गई इसके अंदर. एंड फ्रूट में हो जाता है सिट्रस कैंकर. सो दीज 4 आर द एग्जांपल ऑफ मोड ऑफ एंट्री थ्रू द स्टोमेटा. इसके अलावा नेचुरल ओपनिंग्स इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? एक होती है हाइडाथोड्स. तो हाइडाथोड्स जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बीएलबी ऑफ कॉटन, सॉरी बीएलबी ऑफ राइस एंड ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज. ठीक है. तो बीएलबी और ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज जो है इनकी एंट्री होती है थ्रू दी हाइडाथोड्स. नेक्स्ट है इसके अंदर नेक्टरीज या फ्लोरल पार्ट्स के थ्रू. तो नेक्टरीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है आपका फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर. ये एक मेजर एग्जांपल है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर यानी कि एर्विनिया माइलोवोरा की एंट्री होती है नेक्टरीज के थ्रू. एक होता है लेंटिसेल्स. तो लेंटिसेल्स जो होता है इसके अंदर आ जाता है स्कैब ऑफ पोटैटो या सॉफ्ट रॉट. स्कैब और सॉफ्ट रोट की दोनों ही पोटैटो के इसमें बेसिकली रहते हैं. सॉफ्ट रोट सारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं. तो स्कैब और जो सॉफ्ट रोट होते हैं ये किसके थ्रू होते हैं? लेंटिसेल्स के थ्रू होते हैं. ठीक है. और बैक्टीरियल जो कैंकर होता है टमाटो का जो बैक्टीरियल कैंकर होता है इसकी एंट्री होती है ट्राइकोम्स के थ्रू. ओके. चलो ये तो हो गए कुछ नेचुरल ओपनिंग्स. इसके अलावा इंसेक्ट के थ्रू इंपॉर्टेंट एक तो रहता है इसके अंदर हमारे पास
बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कॉर्न, ठीक है, या जिसको स्टीवार्ट विल्ट भी कहते हैं कॉर्न का, स्टीवार्ट विल्ट, इट इज ड्यू टू पेंटोइया स्टीवार्टी, पेंटोइया स्टीवार्टी। तो इसका वेक्टर जो होता है दैट इज कॉर्न फ्ली बीटल। तो बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कॉर्न जिसे स्टीवार्ट विल्ट कहते हैं, इट इज कॉज ड्यू टू दी पेंटोइया स्टीवार्टी, और इसका वेक्टर कौन होता है, कॉर्न फ्ली बीटल होता है। ठीक है, एक तो ये होता है, एक कुकुम्बर के अंदर बैक्टीरिया, यानी कि कॉर्न और कुकुम्बर, कॉर्न और कुकुम्बर, दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया थ्रू द इंसेक्ट। ठीक है, कॉर्न एंड कुकुम्बर बैक्टीरियल विल्ट, कॉर्न is because of Pentoia stewardii and cucumber is because of Erwinia trachyphili. Okay, the vector of corn one is the corn flea beetle and the vector of wilt of cucumber is the cucumber beetle. Okay, next example is through the nematodes. So in the case of nematode, the important one we already know, the Tundu disease of wheat. So it is due to Angina triticii plus Rathibacter triticii or Clavibacter triticii bacteria. This is the most important example is there. Okay, then different like wound are the general thing. Okay, if there will be wound, there will be injury, कोई वहाँ पे injury हो रखी होगी, कोई चाहे insect की वजह से, किसी भी चीज की वजह से wound के through entry कर जाते हैं। तो important, एक बार इसको अच्छे से revise करो, this is very important, like stomata, stomata in which we learn about that first cereal, cereal is bacterial leaf streak, that is Xanthomonas oryzae, Pathover oryzae. Second important one is about the pulses, that is common blight of bean, Xanthomonas campestris, Pathover phaseoli. Third is for the fiber crop, that is angular leaf spot of cotton, and fourth one is the citrus canker. So these four are from the stomata. Next one is the hydathode. Hydathode is the BLB of rice and black rot of cabbage. Then nectars, nectars के थ्रू कौन से होंगे इसके अंदर, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। लेंटिसल्स के थ्रू होता है स्कैब एंड सॉफ्ट रॉट। देन ट्राइकॉम्स के थ्रू होता है बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो। एंड इंसेक्ट वी आर हैविंग टू एग्जांपल्स, कॉर्न एंड कुकम्बर, both are from the beetle only, and corn is through Pentoia stewardii and cucumber में जो bacterial wilt होती है that is because of Erwinia trachypheli. Okay, so this was very very important. Next is that what are fastidious vascular bacteria. Fastidious vascular bacteria are we called as rickettsia like organisms. Okay, so it was given by Rickettsia, so the because of the scientist name it is done as rickettsia like organism. So basically these are such organisms which was firstly observed in the clover plants. This rickettsia-like organism, this was first observed in the clover plants. It was affected with the clover club diseases, and they are xylem inhabiting or phloem inhabiting. Now you just have to remember that what are the xylem inhabiting and which one are the phloem inhabiting. The most important example of xylem inhabiting is the Leafsonia xyli, subspecies xyli, that causes the sugarcane ratoon. If you forget this, you can write like a rat is infected on the leaves. The rat is sitting on the leaf. The ratoon is on the Leafsonia leaf. The rat is sitting on the leaf. The sugarcane ratoon stunting is caused due to the Leafsonia xyli. And second one is the Xylella fastidiosa. Okay, Xylella fastidiosa. This Xylella fastidiosa causes the Percy disease of grapevine. तो जाइलम के तो वैसे भी याद रह जाएंगे, जाइलेला जाइलेला इसके नाम में ही आ रहा है, बस ये ध्यान रखना कि ये कॉज क्या करता है। लीफ सोनिया जाइली, लीफ पे कौन बैठा, रैट बैठा, तो शुगर केन रेटून स्टंटिंग आ जाएगी। और पर्से डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन जेलीला फास्टिडियोसा। ठीक है, फ्लोएम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका होता है सिट्रस ग्रीनिंग का। ठीक है, किसकी वजह से होता है, कैंडिडेटस लिबेरोबैक्टर, कैंडिडेटस लिबेरोबैक्टर। और एक कैंडिडेटस लिबेरोबैक्टर जो होता है इट इज ट्रांसमिटेड बाय साइलिड। ठीक है, साइलिड की वजह से होते हैं ये। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर सिक्रीशन सिस्टम। ओके, सिक्रीशन सिस्टम इन बैक्टीरिया। सिक्रीशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वैसे तो ये लाइक अप टू 9 भी होते हैं, बट आपको सारे के सारे तो याद इसमें नहीं रखने होते क्योंकि सारे सारे याद रहते भी नहीं है बेसिकली आपको।
तो इसके अंदर आपको सिर्फ मेजरली लाइक फर्स्ट जो 4 इसके अंदर आपके पास होते हैं, वो आपको थोड़े से अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले 4 या 5 जो है वो ध्यान रखने हैं। वैसे तो लाइक 9 के नियर अबाउट सिक्रीशन सिस्टम्स होते हैं। तो अगर सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट सिक्रीशन सिस्टम, तो सिक्रीशन सिस्टम का बेसिकली काम कहाँ होता है, तो ये क्या करते हैं कि जितने भी पैथोजन वाले टूल्स होते हैं ना उसके, उसको ये बैक्टीरियल प्रोटीन्स को, या जितने भी मॉलिक्यूल से पैथोजेनिसिटी से रिलेटेड बनाते हैं, इसे होस्ट की सरफेस तक पहुंचाना बेसिकली। ठीक है, तो वो पूरा सिक्रीशन सिस्टम होता है कि वहां तक सिक्रीट करवाना है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो फर्स्ट सिक्रीशन सिस्टम होता है, फर्स्ट सिक्रीशन सिस्टम TISS, यानी कि टाइप 1 सिक्रीशन सिस्टम हो गया। ये जनरली आपको सभी तरीके के बैक्टीरिया में मिल जाता है, कुछ स्पेसिफाइड ज्यादा नहीं रहता, एक सिंपल सी असेंबली होती है इसमें। तो ये मोस्टली हमें सबके अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो एक वन स्टेप प्रोसेस रहती है कि ट्रांस इजीली सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, तो मोस्टली ये सबके अंदर आपको मिल जाता है इजीली। तो इसके अंदर क्या रहती है, एक इंपॉर्टेंट जो बस नाम ध्यान रखना है फर्स्ट के केस में, आपको याद रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ते हो, ABC पढ़ते हैं हम। तो ये ABC यहाँ पे होता क्या है, ATP बाइंडिंग कैस्केट। ठीक है, क्या होता है, ये ATP बाइंडिंग कैस्केट होता है। तो टाइप 1 से फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ते हो, ABC पढ़ते हो, तो एटीपी बाइंडिंग कैस्केड प्रेजेंट होता है, तो ये इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, वहां से आउटर मेम्ब्रेन तक लेके जाता है थ्रू अ सिक्रीशन पोर, ये ठीक है। अब इसके अंदर टाइप 1 के अंदर आपके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीएज वगैरह सब कुछ आ जाएगा, मतलब जनरलाइज जितनी चीजें होती हैं वो सब आ जाती है इसके अंदर। तो ये T1 वाला जो होता है, ये आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सभी बैक्टीरिया जो है इनके अंदर आपको मिलता है। ABC एक ध्यान रखना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब सेकंड आता है टाइप 2। ठीक है, अब हम सेकंड क्लास के अंदर आ गए। ठीक है, सेकंड क्लास में अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, सेकंड क्लास में रिलेटेड पढ़ा था कि हमें मिलता है ग्राम नेगेटिव के अंदर, वो दोनों में मिल रहा था। टाइप 2 वाला जो होता है ये ग्राम नेगेटिव के अंदर मिलता है। अब इसके अंदर क्या करे जाते हैं, इसके अंदर किसका ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, इसके अंदर होते हैं प्रोटीज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, यानी कि ऐसे कुछ प्रोटीन, ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के सब्सटेंस कराया जाता है जो उसकी विरुलेंस को डिटरमाइन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इस ये अपरेटस जो भी प्रोटीन्स बनाता है वो पहले कहाँ जाते हैं, पेरिप्लाज्म में जाते हैं। जो बीच का स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन में स्पेस होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में आप पढ़ते हो ना कि दो डिफरेंट मेम्ब्रेन होती हैं, बीच में पेप्टिडोग्लाइकन, तो यहाँ बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है। तो पहले जो भी सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं ये वहां पे पेरिप्लाज्म के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे एक सिक्रीशन पाथवे होता है जिसे कहा जाता है सेक या टैट पाथवे। सेक या टैट सिक्रीशन पाथवे ये इसके थ्रू क्रॉस होते हैं। तो ये आपको सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मिलते हैं, ये पहले पेरिप्लाज्म में जाते हैं। एक सैक सिक्रीशन सिस्टम इसके अंदर होता है, जितने बायोलॉजिकल फंक्शन वाले एंजाइम, प्रोटीज, लाइपेज वगैरह ये सब चीजें होती हैं जो उसकी विरुलेंस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ जनरलाइज चीजें भी जा सकती हैं। इसमें क्या होता है, विरुलेंस से रिलेटेड चीजें जो है ये जा रही हैं, जैसे कि राल्स्टोनिया और जेंथोमोनास वगैरह के अंदर हमें टाइप 2 मिलता है। राल्स्टोनिया, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस के अंदर टाइप 2 मिलता है। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट या जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो पूछे जाते हैं टाइप 3 से, और या पूछे जाते हैं टाइप 4 से। अब टाइप 3 जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर हम पैथोजेनिसिटी के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, टाइप 3 जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, इसमें आ जाता है इंजेक्टिसोम्स, इसमें टर्म यूज हो जाती है निडल सिरिंज। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या आ जाएंगे, जो इफेक्टर प्रोटीन्स जो पैथोजन बनाता है। ठीक है, जो इफेक्टर प्रोटीन्स वो बनाता है जो आगे जाके पैथोजेनिसिटी क्रॉस करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये इंजेक्शन के थ्रू, एक तरीके से इंजेक्टिसोम नीडल सिरिंज के थ्रू उन इफेक्टर प्रोटीन को होस्ट के अंदर जो है उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ये ट्रांसफर जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली क्या वर्ड यूज हो जाता है, इंजेक्टिसोम यूज हो जाता है, और ये भी हमें किस में मिलते हैं, ग्राम नेगेटिव के अंदर हमें ये मिलते हैं। तो उनका एक बेसिक विरुलेंस जो मैकेनिज्म चलता है वो इसके थ्रू चलता है। इसमें इंजेक्टिसोम आते हैं, इसमें इफेक्टर प्रोटीन्स को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर जो है इंजेक्ट करवाया जाता है। तो सूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, सैल्मोनेला मोस्टली के अंदर ये सारा आपको मिल जाएगा। टाइप 4 क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, टाइप 4 यूनिक इस तरीके का सिक्रीशन सिस्टम होता है कि इसके अंदर वन स्टेप या टू स्टेप प्रोसेस चलती है। तो इसके अंदर क्या रहता है, ऑटो ट्रांसपोर्टेशन का सीन रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल या जीन्स नहीं ट्रांसफर होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स भी ट्रांसफर होते हैं। ये अलग अलग तरीके के फंक्शन करता है इसके अंदर।
ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो टाइप 4 है ये अभी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मिल जाएगा, और टाइप 4 बेसिकली रिलेटेड होता है एग्रोबैक्टीरियम से। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से रिलेटेड अगर कोई आता है इसके अंदर, तो वो आता है एग्रोबैक्टीरियम, सॉरी ऑटो ट्रांसपोर्टर टाइप 5 होता है। टाइप 5 जो होते हैं ये ऑटो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 जो है ये एक जर्नल सिक्रेशन सिस्टम है जो आपको ऑलमोस्ट सभी के अंदर मिल जाएगा। इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है एबीसी। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग कैस्केट होता है। टाइप 2 के अंदर मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि पेरिप्लाज्म होता है, उसमें एक सेक्स सिक्रेशन पाथवे होता है। डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह के प्रोटीन यहाँ से सिक्रिएट करके जाते हैं वहां पे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल राल्स्टोनिया और ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस था। टाइप 3 के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है इंजेक्टिसोम, जिसके अंदर इफेक्टर प्रोटीन्स वगैरह को इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसके अंदर जो आ जाते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेंस इसके अंदर आ जाते हैं, सूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, साल्मोनेला। टाइप 4 के अंदर मेजर एग्जांपल रहता है एग्रोबैक्टीरियम का रहता है। इसमें 1 स्टेप या 2 स्टेप प्रोसेस होती है प्रोटीन को ट्रांसलोकेट करवाने के लिए। ठीक है, कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर इसके अंदर हो सकता है क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम आ गए, यानी कि टीआई प्लाज्मिड के साथ जुड़ के इस तरीके से कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर हम करवा सकते हैं इसमें। टाइप 5 के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म जो याद रखनी है आपको, वो याद रखनी है ऑटो ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, इसके बाद वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पहले जो 5 हैं बैक्टीरियल सिक्रीशन सिस्टम के की पॉइंट, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर हमें देखनी है, ठीक है, तो टॉक्सिन्स वगैरह का देखो, जो टॉक्सिन्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट होगा वो आप देखोगे इसके अंदर टाइप 3 के थ्रू होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर हमें पढ़नी है, जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि कुछ सर्वाइवल इन बैक्टीरियाज के कहाँ होते हैं, अब इसका सर्वाइवल हमें देखना है मेजरली। और उसके बाद बस हम क्या करेंगे इसके अंदर, कुछ ऐसी डिजीजेस की बैक्टीरियल की बात करते हैं जो वेक्टर के थ्रू हो रही है, एंड देन अल्टीमेटली हम इसका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल की अगर आप बात करते हो तो सीड के अंदर कौन कौन से प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं। एक तो इसके अंदर आ जाता है आपके पास विल्ट ऑफ बीन। ठीक है, एक आ जाता है बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो, एक आ जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। ठीक है, तो ये कौन से आ जाते हैं, ये सीड में सर्वाइव करते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, ठीक है, बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो एंड विल्ट ऑफ बीन्स। तो ये तीनों जो हैं ये बैक्टीरिया सीड के अंदर सरवाइव करते हैं। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन सरवाइव बोथ इन इंटरनली और एक्सटर्नली सीड बोर्न, या इसका क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन बैक्टीरिया सर्वाइव्स इन, और ऑप्शन में आपके पास आ जाए इंटरनली सीड बोर्न, एक्सटर्नली सीड बोर्न, बोथ ए एंड बी, या सॉइल बोर्न, या डेब्रिस पे सर्वाइव करता है। तो बीएलबी ऑफ बैक्टीरियल आर्म ऑफ कॉटन जो है, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज जो है, बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टमाटो जो है, विल्ट ऑफ कॉर्न जो है। ठीक है, कौन कौन सी, कॉटन, कैबेज, टमाटो, कॉर्न। कॉटन की कौन सी है, मेनली ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। कैबेज की कौन सी है, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। टमाटो का कौन सा है, बैक्टीरियल कैंकर। और कॉर्न कौन सी हमने पढ़ी, स्टीवार्ट विल्ट, जो बीटल के थ्रू हो रही थी। तो कॉटन, कैबेज, टमाटो, कॉर्न, ये चारों जो बैक्टीरियल डिजीज होती है, दीज आर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बोर्न बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड होता है कि सॉइल के अंदर कौन से सर्वाइव करते हैं। तो सॉइल में सर्वाइव करने के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स आर देयर, तो टू मेजर टर्म बेसिकली हम पढ़ते हैं, लाइक वन इज सॉइल इन्वेडर एंड वन इज सॉइल inhabitant. So soil inhabitant means they are having their home as soil only. So they are like saprophytically they are very active in soil. They used to survive in soil only. Okay, so these soil inhabitants contain the crown gall, means agrobacterium, and soil invaders, they are actively near the root region, so they are associated with the host. Okay, so they are less active in like empty soil, bare soil. They are mainly more active near the rhizosphere region or root regions. Here the most of the plant pathogenic bacteria are soil invaders. So this statement you have to remember, most of the plant pathogenic bacteria are soil invaders. Okay, so in the case of insect we have remembered the two one, corn wilt and cucumber wilt. And other than that you can remember like in agriculture material also, like they could survive in the debris, other are okay. So basically these three are important, you should remember this. Okay, now
Okay. So now one thing is the pathogenicity related. Pathogenicity related like the soft rot bacteria. That means the Erwinia keratovora or Pectobacterium keratovorum. So they basically degrade the pectinase. So they produce the pectinase enzymes. Okay. Some bacteria produces the toxins like taptoxin. So this was the first toxin. So this taptoxin is produced by Pseudomonas syringae pathover tabaci. Okay, this is known as wildfire disease, wildfire of tobacco, Pseudomonas syringae pathover tabaci. So it produces the tab toxin. Okay, now the mochowilt of banana. Mochowilt of banana is due to the ralstonia. The ralstonia basically block the xylem vessels, it blocks the vascular bundles. Now the phenols. Okay, so the clavibacter, this bacteria generally produces they oxidize the phenols. Okay, so clavibacter michigensis, it oxidizes the phenols. And crown gall basically it causes hypertrophy and hyperplasia. Okay, now second last second last topic is the vector-borne bacterial disease. Okay, this is vector-borne bacterial disease. Vector-borne bacterial diseases like Percy disease of grapevine, that is because of Xylella fastidiosa. ये हमने fastidious जो रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हमने पढ़ा. ठीक है, तो Percy disease of grapevine, Xylella fastidiosa, the vector is the glassy winged sharpshooter. ठीक है, Xylella Percy disease, Persing is very sharp, तो sharp shooter जो है इसे करता है Xylella fastidiosa. Next important one is the Pentoia stewarti, stewart wilt of cotton. So you know it's by the corn flea beetle. Cucumber, Erwinia trachyphelli, it is the cucumber beetle. Then important one is like the fire blight of apple and pear. The fire blight is basically vectors are ants, honeybees. ठीक है, एंड्स भी करते हैं, हनी बीज भी करते हैं, वास्प भी करते हैं, होपर भी करते हैं. तो देर आर मल्टीपल वेक्टर्स फॉर द फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज द सिट्रस कैंकर. So citrus canker is basically a vector is it's basically transmitted by the leaf miner. So in citrus, leaf miner is there. Then uh, corn stunt, that is a spiroplasma disease. It is also by the leaf hopper. Then we studied the citrus greening. It is by the psyllid Diaphorina citri. So these are some of the few important bacterial diseases that are transmitted by different vectors. Okay. Now, next one is the, okay, I think this is sufficient. We just see a few broad classification of the bacteria. When we'll talk about the classification, major only just you just remember, okay? Now, first one, the first phylum. So the domain is bacteria. Domain is bacteria. Now, first phylum is the Firmicutes, or basically the name is given Bacillota, so you just remember the Firmicutes. Firmicutes, we remember it is the gram-positive bacteria. So in Firmicutes, basically two classes came, Clostridia and Bacilli. ओके, बिकॉज ग्राम पॉजिटिव में आपको पता है कौन से दो एग्जांपल हम पढ़ते हैं, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम पढ़ते हैं. तो बेसिलम जो है, बेसिलस जो होता है आपका, इसका फैमिली भी बेसिलेसी होती है, इसका ऑर्डर बेसिलेल्स होता है, इसकी क्लास बेसिली होती है. सो देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग डिफरेंट, इट इज जस्ट सिमिलर ओनली, बेसिलस, बेसिलेसी, बेसिलेल्स, बेसिली क्लास. ओके, सो इन द केस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम, so Clostridia is the genus, Clostridiaceae is the family, Eubacteriales is the order. So in case of Clostridia, Eubacteriales is the order. Okay. Now, second one is the Proteobacteria.
second phylum, Proteobacteria. So in the case of Proteobacteria, there is alpha, beta, gamma. Three are important. Alpha Proteobacteria, beta Proteobacteria, gamma Proteobacteria. So in the case of alpha Proteobacteria, what will come? Here, Rickettsia-like organism, Acetobacter, and Rhizobiaceae. Okay. So basically here, three or four different type of orders will come in case of alpha. Okay, so in case of alpha proteobacteria, there is rickettsiales. Rickettsiales. So in case of rickettsiales, rickettsia will come. Second order is the rhodospirales. Rhodospirales. In case of rhodospirales, Acetobacter will come. Okay, Acetobacteriaceae family and Acetobacter will come. Third is the Sphingomonadales. So that is not important, you can leave it. Next important one is the hyphomicrobials. Hyphomicrobials. So in case of hyphomicrobials, the family is Rhizobiaceae. Okay, in case of hyphomicrobials order, Rhizobiaceae family आती है और ये Rhizobiaceae के अंदर आ जाते हैं Rhizobium और Agrobacterium. यानी कि we can say the Agrobacterium belongs to Rhizobiaceae family. Okay, Agrobacterium and Rhizobium both comes under Rhizobiaceae family और इनका order कौन सा होता है? Hyphomicrobials. Second one is the beta proteobacteria. So this beta proteobacteria contains the Burkholderales. So if you don't remember the order, just remember the Ralstonia comes under beta proteobacteria. Okay, Ralstonia comes under beta proteobacteria. So the gamma proteobacteria, the major order is the Enterobacteriales. Enterobacteriales, Pseudomonadales, and Xanthomonadales. So this is very easy to remember. Enterobacterial, Pseudomonadales, Xanthomonadales means Xanthomonas will come. Pseudomonadales means Pseudomonas will come. And in Enterobacterials, Erwinia, Dickia, Pentoia. Okay, this will come. Now, this is the second Proteobacteria phylum. Third phylum is the Actinomycota. Actinomycota. So in this one, the Clavibacter, okay, then Leafsonia, Rethybacter, Streptomyces, this will come in the Actinomycota. And the last one is the Mycoplasmocota, or we can see Tenericutes or molecutes. Tenericutes and molecutes. Okay, that is the mycoplasma like. So here the mycoplasma and spiroplasma will come. Mycoplasma जो होते हैं इनका जो order होता है that is mycoplasmatales and spiroplasma का order होता है entomoplasmatales. Entomoplasmatales. So once just listen me very carefully. This is the last topic of bacteriology and I'll remember all the classification. Listen and just remember it in mind. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हिंदी में बता रही हूँ फिर इंग्लिश में बता रही हूँ 2 बार रिवीजन हो जाएगी आपकी. सबसे पहले देखो डोमेन जो है वो बैक्टीरिया है. अब इसको हम 4 डिफरेंट फाइलम के अंदर देख रहे हैं. पहला है फर्मिक्यूट्स आपका, दूसरा है प्रोटियोबैक्टीरिया जो मेनली आपके ग्राम नेगेटिव आ जाएंगे, इसमें ग्रासिलिक्यूट्स आ जाएंगे. थर्ड है एक्टिनोमाइसिकोटा एंड फोर्थ है हमारे पास माइकोप्लाज्मा वाला. तो जो फर्मिक्यूट्स है उसमें मेनली आपकी 2 क्लासेस आ जाती है, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडिया वाली आ जाती है. तो क्लोस्ट्रीडिया की जो क्लोस्ट्रीडिएसी होती है इसके ऑर्डर का नाम होता है यूबैक्टीरियल्स क्लोस्ट्रीडियम का. बेसिलस का सारा बेसिलाई से रिलेटेड है तो ये खत्म हो गया. सेकंड आता है इसमें प्रोटियोबैक्टीरिया. तो प्रोटियोबैक्टीरिया में अल्फा बीटा गामा 3 आ जाते हैं. अल्फा वाले के अंदर कौन से आते हैं? रिकेट्सिया आ जाते हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर भी रिकेट्सियल्स होता है. दूसरा इसमें एसिटोबैक्टर आता है जिसका ऑर्डर होता है रोडोस्पाइरल्स. एसिटोबैक्टर रोडोस्पाइरल्स के अंदर आता है. तीसरा होता है इसके अंदर, तीसरा भूल जाओ, मेन जो ध्यान रखना है इसके अंदर कि हाइफोमाइक्रोबियल्स. हाइफोमाइक्रोबियल्स के अंदर आती है राइजोबिएसी फैमिली. हाइफोमाइक्रोबियल्स में आती है राइजोबिएसी फैमिली और इस राइजोबिएसी फैमिली में राइजोबियम भी आता है और एग्रोबैक्टीरियम भी आता है, ठीक है. बीटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर राल्स्टोनिया आता है, ठीक है. गामा के अंदर 3 मेजर ऑर्डर ध्यान रखने हैं, एंटोबैक्टीरियल्स, सूडो और जेंथोमोनाडेल्स. तो जेंथो वाले के अंदर जेंथोमोनास और जाइलेला एक्सेक्स वाले आ जाएंगे. सूडोमोनाडेल्स के अंदर सूडोमोनास आ जाएगा. एंटेरोबैक्टीरियल्स के अंदर इर्विनिया, पेंटोइया, डिकिया
और पेक्टोबैक्टीरियम, ये सब आ जाएंगे। एक्टिनोमाइसीटिकोटा जो होता है, इसके अंदर माइक्रोकोकेल्स यानी कि क्लेवीबैक्टर, कर्टोबैक्टीरियम, रेथाइबैक्टर, लीवसोनिया, ये सब आ जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस भी इसमें आ जाता है, रेडोकोकस, नोकार्डिया, सब इसमें आता है। और टेनेरी क्यूट्स या मॉलिक्यूट्स जो हम माइकोप्लाज्मा के लिए यूज करते हैं, इसके अंदर फाइटोप्लाज्मा आ जाती है, माइकोप्लाज्मेटेल्स आ जाती है, माइकोप्लाज्मेटेल्स में माइकोप्लाज्मा आएगी, और स्पायरोप्लाज्मा का ऑर्डर होता है एंटोमोप्लाज्मेटेल्स। ठीक है, तो ये वाला जो आपकी क्लासिफिकेशन अभी हमने बोली है, ये एक रिटन फॉर्मेट के अंदर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये और फंगल क्लासिफिकेशन, इन दोनों को रिटन फॉर्मेट में भी दे दिया जाएगा आपको, ताकि आपको रिवाइज करना इजी हो जाए। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द जनरलाइज्ड प्लांट बैक्टीरियोलॉजी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर इसी वीडियो का एक पार्ट बी, जिसके अंदर हम माइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट द माइकोलॉजी।